अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, माशरे में ज़िंदगी इस तरह गुजारें जिस तरह जिस्म के अंदर एक आंख होती है। तकलीफ़ चाहे पैर में हो, आंख भर आती है। गलती सारा जिस्म करता है लेकिन शर्म से आंख झुक जाती है। ज़रूरत जिस्म को होती है लेकिन आसमान की तरफ दुआ बनकर वही आंखें उठ जाती हैं। जिस माशरे में आप रहते हैं इसको एक जिस्म की तरह होना चाहिए और सबको एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। इसी तरह ज़िंदगी गुजारें जैसे आपकी आंखें आपके जिस्म में गुजार रही। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो और चलते हैं इर्जा की तरफ, पूछते हैं आज क्या खबर है। जी इर्जा। हारून साहब, आज खबर है कि खबर कादी होनी है? ओए होए होए हारून साहब, पिछे को फैक्ट्री ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। क्यों? ਆ ਸੜੇ ਸੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ? हारून साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। क्यों? ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੂਏਦਾਰ ਹੋਏ। अच्छा ये बताओ अंदर क्यों आए हो? सर वो लारी खराब हो गई। ओ लारी खराब कर, मैं क्या करूं? उठो, आज शो आके कर लेना, ठीक करो जाओ। हमें अपना शो करना है और चलो निकलो यहाँ से। सर जी निकलना क्यों आ ਅਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। अच्छा ये सुरमा लगाया हुआ है आपने? हाँ जी मैं ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਦਾ गोरकी क्यों किस्म से रंग छड़ गया अपना वो मेहमान वेखो टोपी वाला, वो आखिर वाला। माशाल्लाह लगता नहीं गुलाब जामुन जी शुरली चली। आपकी तबीयत ठीक है? सर्दियां च माइयां कहंदियां बिल्लियां रो रही उदों ए रो रहा हुंदा। यार कुशन दे दो, मुझे जमीन पे बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। बहुत मेहरबानी सर यकीन करो कुशन ते बैठे भी ठीक नहीं लगने। ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ, ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਯਾਰ। हेलो जी, आज ये मामे लो ਭਾਈ ਲਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ओ ਪਰੇ। यार लारी खराब होगी, मैं क्या करूं? अब आ गए हो ना, खामोशी से बैठो, हमें शो करने दो। नवी लारी लईए ना तेरे वर्गी जुत्ती अगे बन्नी होंदी। ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। बेचारा मेरे ख्याल लाहौर ना जवाई को खर्चा लैन चला सी, रस्ते च बस खराब हो गई। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। वाह 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 वाह, आवाज नहीं ना काले ते तिन्ने मुड़ के वेखदे। ਲਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी हाँ जी, सिख सप वेख भी रहे। ਅਮਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। अच्छा जी। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਗਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਏ, ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜੋੜ ਏ, 7ਵੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਛਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗਲਾ, ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਫ ਗੇਮ 'ਚ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਈ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। वाह वाह हाँ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੋਈ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, वाह वाह। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੱਖ ਹੋਵੇ। ਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਕਰੇ। ਲਾ ਲਵੇ ਜੁੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਰੇ। ਦੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਕਰੇ। नचना छड़ देंदे जो फुल जान खुसरे। ਚੰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਜੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਵੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। क्या कहने ਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਰਾਬ ਵੀ ਏ, ਪੀਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ जी जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। ਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚ। 20 ਦਿਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 5 ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਏ। ਲਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੀ ਰਿਆਤ ਏ। ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਕਵਰ 'ਚ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਹਟ ਕੇ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮੋਮਨੋ, ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਉਰਿਆ ਯਾਰ ਏਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਜਣੋ। 4 ਆਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਜਣੋ।
ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਚਣਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਚੀਜ਼ ਜਈ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ। ਓਏ ਘਰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਚਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। 4 ਆਨੇ 4 ਆਨੇ 4 ਆਨੇ। आया भाईजान आया। नहीं नहीं 4 आने का बहुत महंगा है ये। और ये बावजूद वो कह रहे हैं कि हाथ च रखो ताकि मैं किसी ने उधार भी नहीं करना, कोई ऐसा भी नहीं। तेरे वर्गा बंदा ना 1.5 रुपए का समोसा लैके ते क्रेडिट कार्ड देन दिया हुंदा। बह जाओ यार सुरमे वाला नहीं गल सही होई ते च गुस्से वाली सुरमे वाला कोशिश क्यों करदा? ਭਾਈ ਸੁਰਮੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਘਟਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਕਣਾ। ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਦੇਖ ਵੀ ਕੋ ਵੰਡਦਾ ਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਲ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਸੀ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। होण तो बाद भी मायूस सी जी, पता नहीं मैं होया कि नहीं होया। लो जी मैंने इजाजत है जी। जी इजाजत है। लो जी मेरे वीर जी, मौजिन हवतिन हजरात, ਆਹਾ मैं करोड़ियां या फुले बेचने वाला रे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 89 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। मौजिन हवतिन हजरात, मैं करोड़ियां या फुले बेचने वाला रे। ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। तेरा गड्डी आस्ता चलाना झुके ना वजने सवारियां बैठियां ने। इंदा वक्त दी नहर होवे, करो दुआ सारे मेरे मंजन दी खैर होवे। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੰਜਣ ਬਿਮਾਰ ਆ। दोस्तों बुजुर्गों न्याणे उत्ते सियाणे हो, दुध नालों पानी जरा तुसी पछाणे हो। मेरे कोल दारू है जी दंदा दी मशीन दा। यार बहुत अच्छे यार, गुड यार। दारू मतलब दवाई? जी जी दारू मतलब दवाई जी। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਮੰਜਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। मेरे कोल दारू है दंदा दी मशीन दा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ? ਚੱਕੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਇਹ ਪੀਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਦੀਮ ਦਾ। ज्यादा जोर ना दियो, बच्चा है यतीम दा। ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੜੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਣਾ। ਖਿੱਚ ਸਕਣਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਲੋਹਾ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਚੀਚੀ ਦੀ ਅੜੇਸ ਨਾਲ ਹਣੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਣਾ। ये हणु क्या होता है? ये कह रहा है कि मैं अपनी चीची से यानी सबसे छोटी उंगली से रूट केनाल कर लेता हूँ। अच्छा। ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਪੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਸੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਕਢਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। क्यों? ਮੋਤੀ ਸਮਝ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੰਦ ਕਢਾਈਏ ਨਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਜੇ ਲਚਾਰੀ ਹੋਵੇ। मुंह तेरा है जी जंग वाली कुहाड़ी होवे। लेकिन उनके दांत साफ हैं, इससे लग रहा है कि इनका मंजन का आरामद है। सारे दूसरे लगे हुए हैं। अच्छा। अच्छा दांत इनके आपके असली दांत नहीं है अपने? ਅਸਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੰਜਣ ਨਾਲ। ਸਾਲੇ ਵੇਚਦੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਘਰੋਂ बैग इंज ही लेकर निकलते, पापा मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विलियम शेक्सपियर का करैक्टर है हैमलेट। जिस तरह खड़ा है और वो ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਲ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੰਜਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਜ਼ਾਬ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦਵਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਤੇ ਲਟੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। कौन सा जिक्र? ਡਾਕੂ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਏ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੀ ਏ? ਉਹ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਓਏ किसी ने नहीं मांगी नहीं। लेकिन कीमत क्या है? ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਏ। एक थैली तो अब होती नहीं है। ਇਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਸਦੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ये टाइम ट्रैवलर्स लग रहे हैं। ਉਹ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੌਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। बैठ जाए यार, मंजन नहीं चाहिए आपको, बैठ जाए। नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं चलो ठीक है। यार किस कदर मुतमिन बिजनेस है। अच्छा पता नहीं ये हैट वाला मुझे अपना अपना सा क्यों लग रहा है? चाचू लग रहे होंगे चाचू। ये तेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। अच्छा जितनी देर खड़ा रहा ना ठंड नहीं लगी, जू ही बैठे हैं कर।
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਖੈਰ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਧੀ ਦੀ ਜੰਜ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਜ ਭੂਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ अच्छा जी आपके पास क्या है ਇਹਦੇ ਕੋ ਬਿੱਲੀ ਆ ਕੱਢਣ ਆਇਆ जी आप क्या बेचते हैं ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਤਰੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਿਜਿਆ ਹੈ जी अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਵਾਹ ਮਨੂਸਾ ਵਾਹ ਮਨੂਸਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਣ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਬੂਹੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ अच्छा बाकी दोनों लोग अपने प्रोडक्ट्स को लेके ना बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे थे ये तो बहुत परेशान लग रहा है ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੇਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਡਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ क्यों ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁਗਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਣ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਫੇਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਭਾਈ ਆਪ क्या काम करते जी भाई 6 दिन मैं फारग होता हूँ और एतवार की छुट्टी ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਣ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੁੱਗੂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਚੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗੋਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੂੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਗਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਨਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਰਮਲ ਤੇ ਨਜੂਮ ਜਾਦੂ ਜਫਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੰਤਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਟੇ ਹਦੀਆ ਰੁਪਈਆ ਸੀਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇਲੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਆਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਦਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਨਾ ਫੱਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਫ और लेना देना होता है ਹਾਂਜੀ या तू इन्हां कोलों जिन्ना भी लिया लेना और देना नहीं है उसने ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ क्या ਮੇਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ नाजरीन हमारे ये सेगमेंट अनवर मसूद साहब की नज्म जेहलम द पुल से माखूज था उनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज वाह नाजरीन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाइएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद कि अमेरिका के एक साहब हैं जो कि इस वक्त दुनिया के गालिबन सबसे अमीर आदमी है एलॉन मस्क उनका नाम जी वो 11 अरब डॉलर इस साल टैक्स दे रहे हैं एक आदमी तर उनको चक्कर दे के थोड़ी इमिग्रेशन दवाओ वेलकम बैक नाजरीन अब हमारा सेगमेंट है जी वर्ल्ड ऑफ विजडम वाह आज आपने वाह क्यों नहीं कहा वर्ल्ड ऑफ बिजनेस क्या कहा है आज दानिश साहब ने खास तौर पे ये हुक्म दिया कि हम आज जहाने दानिश जरूर करें ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ दिया और हम आ गए आज जब मुझे हुक्म हुआ तो मुझे एक वाक़या ये याद आया कि एक मर्तबा एक ऐसा जुमला मैंने अपने एक उस्ताद साहब के मुंह से सुना उस जुमले ने ज़िंदगी के बारे में और इल्म के बारे में मेरी ज़िंदगी की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी उसको बदल के रख दिया और मुझे यूं लगा कि जैसे वाक़तन
ये सच्ची बात है। बिल्कुल ये एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ आज तक पढ़ चुका हूं मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है। इल्म की दुनिया में जज्बात की कोई कदर नहीं होती। वाह, ये एक ऐसा जुमला है सुनने में निहायत सादा और आसान और सीधी सी बात है कि भाई इल्म की दुनिया में जज्बात की कदर क्यों नहीं होती। अब आप गौर करें, हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, जब भी किसी का खिताब सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं, तो हम प्री कंसीव्ड चीजें अपने जहन में रखते हैं जो हमने आज तक सीखी हैं, उनको सामने रख के उसकी बात सुनते हैं। जो भी शख्स किसी की बात अपने दिल के अंदर कोई जज्बात रख के, मोहब्बत, नफरत, दुश्मनी, कीना, इश्क, कुछ भी जज्बात रख के सुनेगा तो उसकी बात ठीक समझ में नहीं आएगी। वाह, जब भी आपने कोई किताब पढ़नी है, किसी उस्ताद से सीखना है, समझना है, सुनना है, तो सबसे पहले अपनी तासुब की वो ऐनक उतार दें जिसमें आप पहले से ही जानते हैं कि ये आदमी मुझसे कम पढ़ा लिखा है, ये क्या बताएगा मुझे। यानी कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। जब आप ये सोच लेते हैं कि ये तो कमतर है मुझसे, मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है, मुझे क्या सिखाएगा, आप कुछ नहीं सीख सकते। सुभान। जब आप ये सोच लेंगे कि ये शख्स मुझसे कम तर है, तो इसमें एक चीज आपने पहले ही सपोज कर ली कि मैं अफजल हूं। तो हमने बात की थी कि जो पहले ही सोच लेता है मैं अफजल हूं वो तो शैतान है। जिसने सोच लिया था कि मैं अफजल हूं वो शैतान बन गया। इसीलिए आप ये देखिए कि जरूरी नहीं है कि कोई उम्र में आपसे छोटा है तो आप उससे कुछ नई बात सीख नहीं सकते। फिर जहां मैं ये कह रहा हूं कि तमाम शागिर्दों को अपने दिल से मोहब्बत, कीना, जोश, वलवला, इश्क, मुरव्वत, नफरत, सब चीजें साइड पे रख के बात सुननी चाहिए उस्ताद की। यही मैं एक दरख्वास्त करूंगा असातिज़ा से कि आप भी जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आपके जहन में भी एक बात पहले से मौजूद होती है कि ये बच्चा नालायक है, ये नहीं सीखेगा। यकीन जाने कि उस बच्चे के दरवाजे आपकी सोच बंद कर देती। इसीलिए कहते हैं ना कि ये नहीं देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एग्जैक्टली। और होता क्या है, असातिज़ा फिर उस बच्चे पर ज्यादा मेहनत करते हैं जो पढ़ने लिखने वाला होता है, जो हमेशा फर्स्ट आता है। हालांकि मेहनत उस पर ज्यादा करनी चाहिए जो नहीं पढ़ पा रहा। मेरी गुजारिश का एक मतलब ये भी है कि बच्चों को जज ना करें कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा नहीं है। देखिए, जब आप पैदा होते हैं ना, तो आप अपने ऊपर खुद कवर चढ़ाने शुरू कर देते हैं। कैसे? किसी ने कह दिया कि आपका बच्चा तो बिल्कुल बाप जैसा दिखता है, तो बच्चा कहता है मैं बाप हूं, मैं बिल्कुल बाप जैसा हूं। कोई आता है कहता है आपका बच्चा तो फलां हीरो की तरह का दिखता है, आप कहते हैं मैं तो वैसा हीरो हूं। तो दुनिया आपके ऊपर कवर चढ़ाने शुरू करती है, आप उसे कबूल करना शुरू कर देते हैं। उस्ताद भी ये करता है, ये नालायक है, ये लायक है, ये शरारती है, ये नहीं शरारती। टैग लगा देते हैं तो बच्चा समझने लग जाता है मैं वैसा ही हूँ। एग्जैक्टली। खुदारा उस्ताद बच्चों के ऊपर कवर ना चढ़ाएं। मुझे यहाँ पे एक वाकया याद आ गया कि एक क्लासरूम में एक बच्चे ने शोर मचा दिया कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई, अभी मेरे बैग में थी। उस्ताद ने ये कहा, बहुत बड़ी क्लास थी, उस्ताद ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सबकी तलाशी लेता हूँ, किसने चोरी की है। उसने कहा कि ऐसा करें, सब बच्चे यहाँ मेरे करीब आके खड़े हो जाएं और आंखें बंद कर लें, मैं सबकी तलाशी लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को पता चले कि घड़ी किससे निकली। वाह वाह। तीसरे चौथे लड़के की जेब में से घड़ी निकल आई, लेकिन उस्ताद साहब ने यह किया कि उन्होंने तमाम बच्चों की तलाशी फिर भी ली ताकि ये एहसास ना हो सके कि किसके पास से घड़ी निकली। जब सब बच्चों की तलाशी ले ली तो कहा आंखें खोल लीजिए, और जिसकी घड़ी थी उसको दे दी कि भाई मिल गई। सही। ये वक्त गुजर गया, वो बच्चा बड़ा हो गया जिसने चोरी की थी। वो एक मर्तबा अपने उस्ताद साहब को मिला और उसने कहा कि सर एक सवाल का जवाब तो दें। क्या? वो कहने लगा कि मेरी जेब से वो घड़ी निकली थी, आपने जिस तरह आंखें बंद करवाई और उसके बाद आपने कभी ना मुझसे नफरत की, ना मुझे बुरा भला कहा, ना मुझ पर कोई टैग लगाया। मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हुआ कि आप मेरे साथ फिर भी इतने शफीक हैं कि मैंने सारी जिंदगी फिर कोई बुराई को हाथ नहीं लगाया। आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर ये चीज कैसे आई, जानते हुए भी कि मैं चोर हूं, आपने मुझसे नफरत नहीं की और बाकी सबके सामने शर्मिंदा भी नहीं किया। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा जब मैं तुम लोगों की तलाशी ले रहा था तो मैंने भी आंखें बंद कर ली थी, मुझे भी नहीं पता था किसकी जेब से निकली। वाह 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 वाह। अल्लाह उस्तादां दा भला करे, इन्हां नूं सीधे राह पै गए नहीं तो इन्हें कातल होना सी।
आज मैं आपको एक खबर दूं कि अमेरिका के एक साहब हैं जो कि इस वक्त दुनिया के गालिबन सबसे अमीर आदमी हैं, एलॉन मस्क उनका नाम। जी। वो 11 अरब डॉलर इस साल टैक्स दे रहे हैं एक आदमी। वाह 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 वाह। तो वो कमाते कितना होंगे? एग्जैक्टली 11 अरब डॉलर। आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो कई साल पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। सर उनको चक्कर देके थोड़ी इमिग्रेशन दो। आप ये देखें कि उस शख्स ने इतनी दौलत कमाई है किस बुनियाद पर? सिर्फ एक आइडिया, सिर्फ एक छोटी सी सोच एक दिन उसे आई। उसने ये सोचा कि जो बड़े बड़े रॉकेट खला में जाते हैं, जी जी, जो मुख्तलिफ चीज़ों को, सैटेलाइट्स को खला में छोड़कर आते हैं, वो जब जाते हैं तो खुद तो फना हो जाते हैं। वो जो आप बड़ा सा रॉकेट देखते हैं ना, उसके अंदर तकरीबन कोई 10% सामान होता है असल ज़रूरत का, बाकी सारे का सारा रॉकेट उसको पहुंचा के खुद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत महंगा था ये काम। उसको सिर्फ इतना आइडिया आया कि जो रॉकेट जा रहा है, इस रॉकेट को मैं किसी तरह वापस ले आऊं। जाहिर है 4 पैसे बचने के उधरों आंदा है, सवारियां ले आवे। वो उधरों आंदा कोई चीज़ा ले ही आएगा। अच्छा, वैसे वाकई मकसद उसका यही था कि एक ही रॉकेट कई मर्तबा चीजें ऊपर पहुंचा सकता है। हाँ जी, 2-3 फेरे वध लग जान, फायदा ही है। और उस शख्स को जिंदगी में 3-4 मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटा और वो उस रॉकेट को वापस लेकर आया। लेकिन देखो उन्होंने रॉकेट सिर्फ वापस होदा आया तो पैसे आ गए ने। वो साडा रॉकेट ते कदों दा वापस आ रहा है। अच्छा, कई दिन ओ पुत्र ए मेहमान आए ते रॉकेट वांगू जा ते रॉकेट वांगू वापस। देखिए इसके आइडियाज। अब अगला आइडिया आपको पता है एलॉन मस्क का क्या है? नो सर। वो ये चाहते हैं कि बीजिंग से न्यूयॉर्क आपको 1.5 घंटे में पहुंचा दें। बहुत अच्छे जी। सर वैसे कितना सफर है? वैसे आपको तकरीबन 20 घंटे लग जाते। ओए होए होए होए। 20 घंटे का सफर 1.5 घंटे में। वो ये करेंगे कि जो बड़े रॉकेट्स हैं उसके अंदर सवारियों को बिठाएंगे, 1.5 घंटे का फ्लाइट टाइम है, वो सीधा उड़ेगा, खला में जाके और लैंड करेगा वापस न्यूयॉर्क में। इट वुड टेक ओनली 1.5 आवर। और उसके मजीद आगे बढ़ के एक और आइडिया उनके पास। वो क्या सर? शहरों से ट्रैफिक खत्म करनी। सबसे पहला शहर जो उन्होंने पकड़ा है वो उनका ही शहर लॉस एंजलिस है। ओए। उसमें उन्होंने क्या तरीकाकार निकाला है कि नीचे टनल्स बना रहे हैं। आप गाड़ी सीधी टनल में ले जाएंगे और आगे कोई चीज नहीं है, और ट्रेन की तरह आपकी गाड़ी शहर के दूसरे कोने में पहुंच जाएगी। सारे वो ही है जड़ा बच्चे नु कहीदा तेरे मैं कनल ते मारूंगा एक। नहीं भाई, टनल होती है जो सुरंग होती है। तेन सुरंग का नहीं पता? सुरंग दे चूहे। मैं ये समझता हूँ ये दुनिया का 9वां अजूबा होगा। जैसे 8वां तो मैं समझता हूँ कि कराक्रम हाईवे है, जिस पे बड़ी शानदार अभी एक दस्तावेजी फिल्म आई है, कराक्रम वेयर मैन मीट माउंटेन्स। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। 1967 में पाकिस्तान ने, हमारी मिलिट्री ने इसको स्टार्ट किया बनाना और 70s के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी थी। और इसको देखकर एक जर्मन शख्स ने ये कहा था, बहुत बड़ा इंजीनियर था, उसने जब देखा ना ऊपर से टेरेन सारा कि यहाँ बनानी है, तो उसने तंजन कहा ये जिस दिन बना लेंगे ना पाकिस्तानी उस दिन देखेंगे। हाय हाय हाय। उसमें काम करते हुए 692 पाकिस्तानियों ने जामे शहादत नोश किया और कई चाइनीज ने भी अपनी जान गंवाई इस रोड को तामीर करने में। और इसके हर किलोमीटर पे कहते हैं कि एक जान गई। और कराक्रम हाईवे दुनिया की सबसे बुलंद, सबसे बड़ी इंटरनेशनल हाईवे। वाह 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 वाह। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा माशाल्लाह ना, मैं आज मैंने अंदाजा है कि इस शो दे ना मैं कल्ला शादीशुदा है। बाकी एंकर भी बैचलर है, 2.5 फुट दियां मुछां वाला भी बैचलर है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है? खबर है दौरान परवाज मामूली सी बात पर मुसाफिर गुत्थम गुत्था। मामूली सी बात से? जी जी, ये दसो कि मामूली सी बात पे गुत्थम गुत्था हो सकता बंदा? हो सकता किसी ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੈਰ ਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇ ਸਦਕੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ये 28 साल की एक खातून थी
कैलिफोर्निया में डोमेस्टिक फ्लाइट थी। अमेरिका की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो उनका बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा सर, उत्थे हर चीज मुल लेनी पैंदी अंदरों ही। जी 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 जी। और उसके अलावा एक मजे की बात यह है कि अगर आप लाइन में खड़े हैं जहाज की बोर्डिंग के लिए, तो आप अगर लाइन में आगे आना चाहते हैं तो उसके अलग पैसे हैं। अच्छा जी, आप इतने डॉलर दें तो आप लाइन में थोड़ा आगे खड़े होते हैं। मिर्जा भी गया थे कैलिफोर्निया जी। अगली सवारी ने कहना मैंने पैसे दे दो, मैं सब तो पीछे चला जाता। जी इर्जा। खबर है कि बारातियों ने टेंट में आग लगने के बाद भी खाना खाना ना छोड़ा। वो तो समा उन्होंने गरम गरम मिलया होएगा। नाल नाल ही कर रहे होने। अच्छा, वो ऐसे बाराती थे। ये वीडियो एक सरफेस हुई थी इंडिया की सोशल मीडिया के ऊपर, एक वीडियो सरफेस हुई थी जिसमें आग लग गई है टेंटों को, वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और बफे पे खड़े लोग खाना खाते चले। उसे टेंट च लक्की ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। अच्छा, ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। तेरियां फिकियां सुन के ना मैनू अग लग गई है। जी इर्जा। जदीद तहकीक के मुताबिक महबूब का हाथ पकड़ने से दर्द कम हो जाता है। बहुत अच्छे जी, एक नवा जी निकले काम। गोगे ने अपने महबूब दा हाथ पड़िया और उन्हें फिर अगों गंदियां गालां कढ़ियां और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਝੰਡਾਂ ਪਈਆਂ। आगे तो महबूब दे भी दर्द हो रही थी, उन्हें क्या मेरा हाथ फड़ेगा जी, इन्हें उधर नाश्ता फड़ लिया। अच्छा, आप पकड़ते हैं जी हाथ अपनी ज़ौजा का? कौन आगा साहब? कौन जी? आप। अल्लाह माफी। अरे एक मिनट सब्र करो, अल्लाह माफी। आप नहीं पकड़ते अपनी बेगम? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बेटर हाफ का हाथ पकड़ें या अपने महबूब का हाथ पकड़ें। महबूब से मुराद ये है जिससे भी आपको मोहब्बत है, जिससे भी आपको उन्स है, अगर आप उसके साथ हों, उसकी कंपनी में हों, तो आपको ना वक्त का एहसास होता है ना जगह का एहसास होता है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं अपनी बेगम से बड़ा प्यार करता हूँ। माशा। वो करती है? इन्हें एडा घुट के हाथ फड़िया, उन्होंने कहा छड़ मैं साइकिल चोर हाँ। आगा साहब, शादी वाले दिन तो आपने थामा होगा जब वो स्टेज पे दुल्हन को बुलाते हैं। अच्छा माशाल्लाह ना, मैं आज मैंने अंदाजा है कि इस शो दे ना मैं कल्ला शादीशुदा है। बाकी एंकर भी बैचलर है, 2.5 फुट दी मुछां वाला भी बैचलर है। उन्हें तो वैसे ही कोई नहीं दिंदा, और जेडी बाथरूम दे कुंडीए रखे शक्ल होती है। अच्छा आगा साहब, देखें शादी के रोज जब दुल्हन स्टेज पर आ रही होती है तो दूल्हा हाथ पकड़ता है, थाम के हाथ ऊपर चढ़ाता है। ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਟੇਜ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। नहीं ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। वो क्यों? यही जानदार सी, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜੋ मैं भी आना ਇੱਥੇ। और हारून, आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो आपके क्लोज रिलेशंस होते हैं, वो आपको किसी ना किसी तरीके से इमोशनली सूद ज़रूर करते हैं। जी बिल्कुल। और आप अपनी माँ की आवाज़ सुने, वही आपके लिए काफ़ी होती है। जी बिल्कुल। तो ये इसमें किसी ना किसी हद तक तो सदाकत इस न्यूज़ में है। मुझे आज तक एक गाना याद है डॉली पार्टन का, बहुत मशहूर है ज़माना गाना, माई कोट ऑफ मैनी कलर्स। उस गाने ने दुनिया में धूम मचा दी। और वो गाना है कि एक दो बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि वो गाना सुनते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसका जो मतन है गाने का वो कुछ ऐसा है कि वो बच्ची ये कहती है कि मेरा जो कोट है इसमें सारे रंग हैं, मुझ पर बाकी बच्चे क्यों हंसते हैं जबकि उनके कोट्स में सिर्फ एक रंग है। अब वजह क्या है कि उसकी माँ गरीब औरत है, उसने बहुत से छोटे छोटे कपड़े मिला के उसके लिए कोट बनाया। वो कहती है मेरे कोट में तो इतने रंग हैं, माई कोट ऑफ मैनी कलर्स, जो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया। फिर वो देखे वो दलाइल क्या देती है बच्ची, वो कहती है एक तो मेरे पास रंग ज्यादा है, दूसरा ये कि मेरा कोट मेरी माँ ने सिया है, इनके कोट तो दर्जियों ने सिए हैं, ये फिर क्यों मेरे पे हंसते हैं। वो ये कहती है कि इनके कोट के अंदर जो धागे लगे हैं वो तो किसी ने बेख्याली में लगा दिए हैं, जो मेरा कोट है उसका एक एक धागा मेरी माँ ने मेरे प्यार में लगाया। तो फिर ये बच्चे मुझ पे क्यों हंसते हैं। माई कोट ऑफ मैनी कलर्स। वाह वाह। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।